Hi guys, so just wanted to provide an update on the current trade that we've done, in Signity Technologies. Uh, so right now the price is 1501. We bought the same stock at roughly 1435, and I've been holding this stock since then. Uh, we have some profit in this particular trade. Uh, what has happened is that markets have been falling down. So if you look at Nifty, Bank Nifty, everything kind of has kept coming down. They are not able to sustain. But हमारा जो stock है आ, वो सस्टेन कर पा रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग कि हमारे पास क्या कहते हैं एक पोजीशन है जो क्या कहते हैं हम लोग होल्ड कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर इन द राइट सेक्टर. आईटी सेक्टर इज होल्डिंग अप बिकॉज ऑफ विच ये पोजीशन काम कर रही है. अगर हम देखें आईटी को तो आईटी हैजंट बस्ट राइट. इट हैज़ बीन स्टेइंग एट एन ऑल टाइम हाई. कोई फ़र्क नहीं आया है इसको. Weekly basis still doing okay. Some pressures there, but not like looks like कि शायद consolidate करेगा. But having said that, I think this was one of the top performers, within IT. So this is how when you pick the right stock in the right sector, this helps you. So what happens is जो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है और जो अच्छा स्टॉक होता है दोनों की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक होती है. अ, अच्छा स्टॉक गिरेगा कम, बढ़ेगा ज़्यादा. तो जब सेलिंग प्रेशर्स आते हैं तो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो कम गिरते हैं. जो जिनमें सेलिंग आती है वो ज़्यादा गिरते हैं राइट. सो अगर कोई और लोगों की जनरल टेंडेंसी होती है दैट दे बाय स्टॉक्स दैट हैव करेक्टेड मोर राइट. बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ शॉर्ट टर्म, आई व्हेन आई से शॉर्ट टर्म, when you're playing momentum specifically, and momentum you can play for few years as well right. But if you are playing momentum and you're playing for few years and you're not buying value specifically, तब आप सप्लाई डिमांड देख रहे हो. और सप्लाई और डिमांड के हिसाब से जिसकी डिमांड ज़्यादा है वो कम गिरेगा. एंड दैट इज़ वॉट इट इज़ राइट नाउ. सो वॉट हैज़ हैपेंड इज़ कि बिकॉज सप्लाई डिमांड का एनालिसिस हमारा ठीक था, ये स्टॉक एक्चुअली ब्रेकआउट करा इन अ टाइम व्हेन द होल मार्केट हैज़ बीन करेक्टिंग बैडली right. So that is the beauty. And again, this had the reason we took a, if you remember, we took only a 5% position in it. And the reason we took a 5% position was we said that यार इसके fundamental momentum उतनी अच्छी नहीं है right. And market has been falling and yet it has been consolidating but it has broken out. So थोड़ी सी position बना लेते हैं. And that is what our approach was. It didn't, I think it didn't show us any loss. 1-1.5% का कुछ loss दिखाई दिया था. Yesterday it went up to as high as 1550 and then came back. And what I had done in this stock is, if we look at intraday charts. So here's again a VWAP plus minus some discount and premium to this chart. For small cap stock I use typically 3 to 4% right. ये मैं यूज़ करता हूँ फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज अगर आप if you're trading commodities, it is plus minus 1%. If you're trading a large cap stock, plus minus 1%. Yeah, small caps may I have a mind 3-4% roughly is what I use. And what happened yesterday, this stock was going up right. So I did a small intraday trade. I usually sell some quantity. तो मैंने 1220 1520 पे एंड 1540 पे कुछ क्वांटिटी निकाली थी. It went till as high, actually यहाँ पे निकाली थी. Sorry, I was showing you the wrong place when it was going up yesterday. And 1520 and 1540 के around. So my average was like roughly 1530 and I'll show you the trade. And I was I said okay बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है and markets are not supporting. ऐसा क्या ही करती है ये कंपनी राइट दैट इतना वाइडली ऊपर जाएगा. एंड generally you will see me, I operate in these areas plus minus to the VWAP right. It might be 3-4% in a small cap. क्यों करता हूँ? Because risk rewards are in my favor right. And you will want to only act in those areas. There are lot of times जब risk reward का पता ही नहीं होता है. It's okay to admit कि यार मुझे नहीं पता right. And I basically behave like that. अगर ये यहाँ कहीं होता कुछ होता, मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी छोटी इंट्राडे में बेच के नहीं जाता राइट. बट आई टिपिकली डू इट जब मुझे लगता है कि यार थोड़ा शॉर्ट टर्म में एक्सटेंड हो गया है.
uh, let me take a small stop loss and shove off my quantity, right? And I'll buy it again. So what I did is basically 1530 पे काटा, and I think 1490 के around यहाँ कहीं मैंने इस मूव के अराउंड मैंने 1490 पे निकाल दिया, राइट? वो दोबारा से क्या कहते हैं बेसिकली, एंड आई डू इट विद स्मॉल क्वांटिटी सो दैट आई कैन ब्रिंग माई बाय प्राइस डाउन. सो इफेक्टिवली व्हाट हैज हैपेंड कि जो मैंने ये स्मॉल अब प्लस माइनस किया है उससे क्या हुआ है कि जो 1435 रुपये का मेरा बाय प्राइस था वो 1420 रुपये हो गया. नथिंग मोर नथिंग. यू you again you can avoid it because I was in front of the screen and I saw an opportunity, so I said might as well do it. अगर मैं screen के सामने नहीं होता, if I was on the move, I was busy in my own other works, then probably not. When I was in front of the screen, I said why not? Because risk rewards are in my favor. It's a short term intraday opportunity that I'm saying, might as well do it. So yeah, I did that. Let me show you, I think the trades. Console. If I go back, reports, trade book. I think symbol is Signi T-Tech. Something went wrong. Anyways, something is happening. Here we get it. So yeah, this is the time. You can see that I was selling few quantities over here. You can see that, right? And I bought these quantities. Somewhere here at at around 1355. That is how. So I initially started my position on 23rd of October. This was the initial buy positions that we took. जब ये थोड़ा ऊपर गया, so I sold some 75 shares, so I had 400 shares. Then, which was at a price of 1518, then 1540, so rough price was roughly 1529, 1530. और जब वापस buy किया, so this is how I bought it at 1490. Roughly, this has been the trade that I took, right? Up till now, I still hold the 400 quantities. If you see my positions, right? Dashboard, not this one. I think if you see my position holding, you still see this position. तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ रहा है, ना कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट, ना बहुत बड़ा कुछ. So nothing big to do here. I think we sit, we enjoy, and see what happens, right? The other thing through this video, I wanted to show is that there is something which I call market breadth, and I look at those charts, and if you look at market breadth right now, so I track roughly 1250 stocks of Indian market. So this, and I track them with respect to their 200 moving average. तो अगर कोई स्टॉक 200 के ऊपर है तो उसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, अगर वो 200 के नीचे तो उसको 0 देता हूँ. तो लेट्स से 100% 1250 में से मैं देखता हूँ कि कितने स्टॉक्स हैं अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये ट्रेंड कैसे कंटिन्यू हो रहा है, राइट? सो द ब्लू लाइन दैट यू सी is the percentage of stocks that are above it, right? Above its 200 moving average, and the ones and the red line, it says own moving average of 14 day. तो 14 पीरियड का उसका खुद का मूविंग एवरेज है और 200 डे डीएमए के परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स है. तो ये बाजार की हेल्थ मुझे बताता है कि बाजार में टिपिकली चल क्या रहा है, राइट? इफ बाइंग इज हैपनिंग, व्हाट वुड हैपन इज buying will actually lift a lot of stocks, right? Think of it like that. Just कि अगर आप अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर उठ रहे होंगे. तो अगर आप जाएंगे पिछले साल अप्रैल एंड ऑनवर्ड्स, एक्चुअली इतनी बाइंग चल रही थी कि भाई ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा था एंड डिडंट ब्रेक, राइट? सो दैट इज व्हाट इट हैज बीन राइट नाउ. बट आफ्टर दैट बाइंग हैज देन बिकेम साइडवेज. And actually पिछले कुछ टाइम से, if I talk after 15th of September, it broke down and October has been only selling and still selling, right? The number couldn't go above 75,
एंड नाउ इट हैज़ ऑलमोस्ट टच 50. आई थिंक आज भी सेलिंग हुई है और 50 के आसपास आ गया होगा. तो मैं बड़ी पोजिशंस, व्हेन आई से बड़ी एंड आई से आई मीन my portfolio allocation would only go high, let's say 100%, 200%. इन एरियाज में मैं यहाँ पर you will see 50 के ऊपर, but the portfolio is pushing up, which is around mid of May last year, May के around. I would be on full throttle. Like मेरा मतलब आप कह सकते हो कि 200% पोजिशन. I'll be on lever. पैसा मैं फ्यूचर्स में पोजीशंस बना लूँगा. आई विल टेक ऑप्शंस, बेट, ऑल ऑफ दैट. इस टाइम पे मैं बाहर बैठूंगा. क्यों बैठूंगा? दो कारण है. एक तो देखिए इसका मूविंग एवरेज भी डिक्लाइनिंग है और ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर भी नहीं जा पा रहा. सो देयर हैज़ टू बी कैपिटुलेशन. पहले तो यहाँ पे अच्छे से सेलिंग आएगी जहाँ पे प्योर कैपिटुलेशन हो जाएगा. अभी हुआ नहीं है मेरे हिसाब से. आई थिंक आई विल वेट. इट माइट हैपन एट 25, इट माइट हैपन एट 29, 30, जैसे एक बार मार्च में पिछले साल हुआ था. इट माइट हैपन समथिंग लाइक हेयर मे बी इन जून 22 when the stocks were at 16. So I don't know where it happens, how it happens, but I'm sure that अभी वो कैपिचुलेशन वाला स्टेज तो आया ही नहीं है कि काफ़ी देर से सेलिंग हो रही है. सो आई विल बी लाइट. ऐसे ही एक दो पोजिशंस बनाऊंगा, नॉट प्ले मच. इनफैक्ट दिवाली आ गई है, आई विल ट्राई टू टेक अ ब्रेक. सो द आइडिया इज ओनली टेक मीनिंगफुल पोजिशंस ओनली व्हेन एवरीथिंग इज इन योर फेवर. अभी बिल्कुल फेवर में नहीं है. एक और मेट्रिक मैं जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि 100 करोड़ क्लब क्या कर रहा है. व्हेन आई से 100 करोड़ क्लब की किस स्टॉक्स के अंदर कितनी बाइंग आ रही है, राइट. अगर 100 करोड़ से ऊपर वाली बाइंग वाले स्पेस वाले कितने स्टॉक्स हैं एक पर्टिकुलर दिन के अंदर, एंड मैं उसका 7 डे का मूविंग एवरेज देखता हूँ. बेसिकली एक हफ्ते का एवरेज देखता हूँ कि इस हफ्ते में बेसिकली कितने स्टॉक्स ऐसे थे जो 100 करोड़ से ऊपर की बाइंग आई उसके अंदर. एंड इफ यू सी दिस नंबर वाज गोइंग अप लाइक क्रेजी लास्ट ईयर. It topped, this year in June, around 20th, tried going up in August, couldn't go up and started declining. तो ये एक अपने आप में, जब आप कह सकते हो कि जब सितंबर में मार्केट ब्रेक कर रही थी, द फर्स्ट थिंग इज दैट वी शुड हैव गॉटन आउट. 15 के मैं थोड़ा लेट हो गया, आई विल बी ऑनेस्ट. मेरे को 15 दिन और लग गए पूरी तरीके से बाजार में, बट मैंने उन 15 दिन में कोई बड़ा नुकसान नहीं खाया. I think I should have been out by, I would say, 15th of September. मेरी पोजीशंस थी, अच्छे से पोजीशंस थी, एंड आई वाज लाइक कि मे बी द मार्केट माइट रिमेन साइडवेज. आई वुड यूजुअली गो अप टू 80, 90, 100% एज वेल, नो प्रॉब्लम. बट मार्केट साइडवेज से एकदम से करेक्ट होने लग गया, एंड इट टुक मी अ वाइल टू गेट आउट. मेरी गलती है, बट आई डिडंट लूज मच थैंकफुली इन दिस प्रोसेस, राइट. एंड आई कट माई पोजिशंस, राइट. कुछ पैसा बना हुआ था जो मैं जल्दी बुक कर सकता था, वहाँ लॉस हुआ है, बट मैंने प्रिंसिपल अमाउंट लूज नहीं किया है, राइट. रिगार्डलेस यू कैन सी इट इज, आई वुड से टेक अ ब्रेक. सिग्निटी में पोजीशन होना, मेरा ना होना, इट्स नॉट गोना मेक और ब्रेक. एक आधा % ऊपर नीचे दाएं बाएं डजंट मेक अ डिफरेंस. द वे आई लुक एट इट, सिग्निटी हैज़ टू एक्चुअली, इफ इट डबल्स फ्रॉम द पॉइंट दैट आई बॉट, मेरे से 5% ही पोर्टफोलियो में ऐड होगा. सो इट्स नॉट गोना मेक और ब्रेक राइट नाउ फॉर मी, एंड दैट इज हाउ इट इज, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. ऑल राइट, थैंक यू. आई विल कीप यू अपडेटेड.